اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم اسی کی بارگاہ سے آئے ہیں اور ہمیں پلٹ کے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ آج کی جو شب ہوگی وہ شب چہلم ہے۔ سید الشہداء، قاتل الابرات، خطیب نوک سنا، مظلوم کربلا حسین ابن علی، ان کے اصحاب کی، ان کے رفقائے کار کی، ان کے اعزاء کی، ان کے اصحاب با وفا کی۔ اس وقت کربلا معلیٰ میں جو مجمع کثیر ہے اس کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ 8 سے 10 کروڑ کے درمیان عزادار موجود ہیں جو پرسہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے گوشے گوشے میں فرش عزا بچھائی جا رہی ہے اور پرسہ پیش کیا جا رہا ہے حسین ابن علی کا، ان کے اہل بیت کا، ان کے اعزاء احباب کا اور ان کے اصحاب با وفا کا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں سفر المظفر میں اس قدر مجالس نہیں دیکھی، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بے شک مصائب پڑھنے سے قبل میں اتنا بتا دوں، خانہ کعبہ میں جانے کے لیے حد ہے، حد کا تعین ہے کہ کلمہ گو ہو، مسلمان ہو، وہ خانہ کعبہ میں جائے گا، حج میں شریک ہوگا یا عمرہ کرے گا۔ غیر مسلم کو وہ جگہ الاؤ نہیں ہے، وہ جا نہیں سکتا ہے۔ مگر یہ مقامات مقدسہ واحد وہ مقام ہے جہاں پر کوئی عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، کسی مذہب کا بھی آدمی ہو، مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ ہو جو عقیدت رکھتا ہے، جو مودت رکھتا ہے اہل بیت سے، وہ جاتا ہے اور وہ شریک ہوتا ہے۔ یہ پوری دنیا کا عظیم الشان اجتماع ہے جو کربلا معلیٰ میں جمع ہوا ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ اتنی چھوٹی سی جگہ جہاں پر یہ جم غفیر کے کروڑوں کا اجتماع جمع ہے، جہاں ایک لوگوں میں ایک ڈسپلن نظر آ رہا ہے، ایک صفائی نظر آ رہی ہے، ایک طہارت نظر آ رہی ہے، ایک سلیقہ نظر آ رہا ہے، اور ایک جذبہ نظر آ رہا ہے، اور وہ جذبہ ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ کہا تھا کہ بابا پھر میرے بچے پہ روئے گا کون، یہ تواریخ کی کتابوں میں موجود ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ بیٹی، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں پر، جس کے ضعیف حسین کے ضعیف، جیسے کہ رجل فقی حبیب ابن مظاہر، جس کی عورتیں ان کی عورتوں پر، جن کے بچے ان کے بچوں پہ گریہ کریں گے، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس مجمع کے اندر ملائکہ، اجنہ، انسان اور اللہ قسم کھاتا ہے زمین اور 7 آسمانوں کے درمیان جو مخلوقات ہیں ان کی قسم، یہ کون کون سے لوگ ہیں ہمیں نہیں پتا، مگر آئیں گے سب بشریت کے پیکر میں، کیونکہ بشریت کا پیکر مسجود ملائکہ قرار پایا تھا۔ ملائکہ بھی آئیں گے تو انسانی پیکر میں آئیں گے، اجنہ بھی آئیں گے تو انسانی پیکر میں آئیں گے، اور 7 آسمانوں کے درمیان اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جو مخلوقات ہے وہ بھی بشریت کے پیکر میں آئے گی۔
کیونکہ وہ مسجود ملائکہ ہے جس کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے کہا احسن الخالقین، میں بہترین خلق کرنے والا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں، حجت خدا کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتا ہوں اس فدینا بذبح عظیم، اس عظیم قربانی کی یاد کروڑوں افراد مناتے ہیں عاشورہ کے نام سے، سوئم کرتے ہیں سید الشہداء ان کے اصحاب کا، ان کے رفقاء کار کا، اور چہلم برپا کرتے ہیں اس عظیم الشان انداز میں حسین ابن علی کا، ان کے اصحاب کا، رفقاء کار کا، ان کے اہل بیت کا، جس نے سن 61 ہجری میں دشت نینوا میں جب سارے لوگ شہید ہو گئے، سارے افراد اون محمد شہید ہو گئے، حضرت قاسم ابن حسن شہید ہو گئے، عبداللہ ابن حسن شہید ہو گئے، کڑی الجوان شہزادہ علی اکبر کو برچھی لگی وہ شہید ہو گئے، 32 برس کا بھائی جس نے ساری زندگی مولا آقا کہا، ابو الفضل عباس، وہ شہید ہو گئے۔ اصحاب کی باری آئی تھی تو سب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ اب مولا اکیلے ہیں۔ اب ایک خیمے میں سید سجاد ہیں جو غشی کی حالت میں ہیں، شہزادہ علی اصغر کو پشت خیمہ پہ دفن کر چکے ہیں امام، اور قاصد صغرا آیا تھا بی بی صغرا کا خط لے کر۔ یہ سب کچھ ہو گیا۔ جب میرے مولا اکیلے ہوئے تھے، میرے مولا نے استغاثہ بلند کیا تھا اس زمانے میں 61 ہجری میں، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں، چھوٹا منہ اور بات بڑی ہو جائے گی، یا فرزند زہرا یا علی مرتضیٰ کی جگر گوشہ ہے، یا حسین ابن علی، اللہ کو پکاریے، یا اللہ مدد کہیے۔ یہ آپ استغاثہ بلند کر رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ دنیا والوں سے مدد چاہ رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے۔ کوئی تحفہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین۔ ثاقب مظفر پوری کا شعر ہے، خدا کی ذات پر جب تک یقین نہ ہو ثاقب، جہاں میں کوئی بھرا گھر لٹا نہیں سکتا۔ تو مولا اللہ پہ اتنا توکل کہ آپ نے اپنا گھرانہ قربان کر دیا، اپنے اصحاب کی قربانی دے دی، اپنے 6 ماہ کے ششماہے کی قربانی دے دی، سب قربان کر دیا، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ کیا فوج چاہیے؟ مولا کہیں گے نہیں۔ کیا ہتھیار چاہیے؟ مولا کہیں گے نہیں۔ کیا لشکر چاہیے؟ مولا کہیں گے نہیں۔ جبکہ ظافر جن آئے تھے، مولا اجازت دیں، یہ مظلوموں کا جملہ ہے، یہ غریبوں کا جملہ ہے، یہ بے کسوں کا جملہ ہے، یہ جملہ نہ بولیں، آقا حکم دیں، میمنے کو میسرے پہ، میسرے کو میمنے پہ قلب پہ الٹ دوں۔ امام نے منع کیا، ظافر جن کو اجازت نہیں ملی۔ تو پھر جب آپ استغاثہ بلند کر رہے تھے 61 ہجری میں، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، تو آپ فوج اشقیاء سے ہی مخاطب تھے نا سب سے۔ مولا کو ہتھیار نہیں چاہیے، مولا کو فوج نہیں چاہیے، مولا کو لشکر کی کثرت نہیں چاہیے، مولا کو کردار چاہیے تھا، مولا کو کردار چاہیے تھا۔ کوئی تم میں اور حر ہے؟ کوئی تم میں اور حر کا فرزند ہے، حر کا بھائی ہے، حر کا غلام ہے؟ مجھے کردار چاہیے تھا۔ تاریخ بتاتی ہے خیام دنیا میں جب بھی اندھیرا ہوتا ہے عزاداروں، دیا جلایا جاتا ہے۔ کربلا میں ایک ایسا بھی دیا نظر آتا ہے جب وہ گل کر دیا گیا تو روشنی ہوئی تھی۔ یہ عجیب چیز نظر آتی ہے 61 ہجری میں۔ اندھیرا ہو جاتا ہے، ہم دیا جلاتے ہیں روشنی ہو جائے۔ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے دیا بجھا دیا، روشنی ہو گئی خیمے میں۔ مولا اگر ہم 100 سال بعد بھی اٹھیں اور ہر بار یہی وقت ہو تو ہم اپنی گردنیں آپ کے اوپر سے قربان کر دیں گے۔
इसी लिए मौला ने अपने असाब पे फ़ख्र किया था, मौला को किरदार चाहिए था। उस इस्तिगासा के ऊपर आज 8 और 10 करोड़ का मजमा हरम हुसैन इब्ने अली को अपने हिसार में लिए हुए है। कहते हैं जब तक कमर बनी हाशिम अब्बास इब्ने अली का परवाना ना मिल जाए, कोई मुकामात मुक़द्दसा बिलखुसूस हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे हाजिर नहीं हो सकता है। मैं गया नहीं हूँ, मैंने ये ज़रूर देखा है कि एक जगह लिखा है या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन आप पे सलाम, एक जगह लिखा है या सार अल्लाह। सार अल्लाह, जो बच्चे नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, सार अल्लाह जिसके लहू का बदला अल्लाह के जिम्मे है उसे सार अल्लाह कहते हैं, या सार अल्लाह। अब्बास इब्ने अली के लिए जो मैंने सुना है कि एक दर है जिसे बाबुल हुसैन कहा जाता है, बाब हुसैन, हुसैन इब्ने अली का दरवाज़ा, वो रसूलुल्लाह के लिए था कि अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, रसूल तक पहुंचने के लिए अली के दरवाजे से गुजरना है। यह हुसैन इब्ने अली का दर है, यहाँ पहुंचने के लिए अब्बास इब्ने अली के दर से दाखिल होकर जाना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि परवाना जब तक कमर बनी हाशिम ना दे दें, कोई हरम हुसैन पे हाजिरी दे नहीं सकता है। मौला लेने के लिए भी जाते हैं और छोड़ने के लिए, रुखसत करने के लिए भी जाते हैं। क्या अजीब बात है, क्या अजीब ये शान है। मैंने न दुनिया में ऐसे रिश्ते देखे। करबला के रेगज़ार पे हुसैन इब्ने अली ने जितने रिश्ते हो सकते थे वो जमा कर दिए। शहजादा अली असगर, शहजादी उम्मे रुबाब के फर्जंद, शहजादा अली अकबर, शहजादी उम्मे लैला के फर्जंद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, शहजादी बीबी शहरबानो के फर्जंद। मगर जब नाम आता है तो कभी जहन में ये नहीं आता है कि इनकी माएँ अलग हैं, एक रिश्ता लगता है। बल्कि जो रिश्ता है वो कुछ नहीं है इनके सामने, वहाँ पे एक शख्सियत नज़र आती है, एक किरदार नज़र आता है। सारी ज़िंदगी जिसने ये कहा हो जी आका जी मौला, जी आका जी मौला। मैंने तारीख़ में ये भी पढ़ा कि एक दिन अब्बास इब्ने अली उम्मुल मसाइब शरीकतुल हुसैन जनाब सानिया ज़हरा जनाब ज़ैनब कुबरा के रूबरू हाजिर हुए। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मुझसे नजरें मिला के अब्बास बात नहीं करते। अबुल फजल अब्बास अलमदार लश्कर हुसैनी का जुमला मिलता है तारीख में, शहजादी जब मेरी माँ उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा इस चौखट पर आई थी, उन्होंने कहा था बच्चों मैं कनीज बनकर आई हूँ, माँ बनकर नहीं आई हूँ, मैं एक कनीज का बेटा हूँ, मैं एक कनीज का बेटा हूँ। आप मेरी आकाज़ादी, मैं आपका गुलाम। गुलाम कभी आकाज़ादी से नजरें मिला के बात नहीं करता है। मैं आपका गुलाम, आप मेरी आकाज़ादी। हुसैन इब्ने अली के लिए कहा जाता है कि जब भी हुक्म दिया, अब्बास इब्ने अली को जब जलाल आता था तो हुसैन इब्ने अली को यह खौफ होता था कहीं तलवार शमशीर जनी ना हो जाए, तलवार ना चल जाए। तलवार कब्जा शमशीर पर होती थी, हाथ कब्जा शमशीर पर होता था। किसी ने आवाज बुलंद की, अबुल फजल अब्बास ने न्याम से तलवार निकाल ली। हुसैन इब्ने अली ने कहा अब्बास मेरे हक की कसम में तलवार को न्याम में डाल दो। अब्बास ने डाल दिया। जब कहा खैमे हटा लो, जोश में आके तलवार को न्याम से निकाला। किसकी मजाल है जो फरात के किनारे से खैमे को हटा दे। अब्बास तुम्हें मेरे हक की कसम है। बावफा इसलिए हैं, जी आका जी मौला कहते हुए तलवार निकालते थे और रखते थे। इसे अताअत कहते हैं। सबर 3 हुरूफ से लिखा जाता है, स्वाद बे रे। इसको अगर कोई शक्ल या शख्सियत का पैकर दिया जाए तो वो पैकर बनेगा हजरत अबुल फजल अब्बास कमर बनी हाशिम का।
क्योंकि अली मुर्तज़ा ने यही कहा था जनाब अकील से कि मुझे एक ऐसा ख़ानदान चाहिए जहाँ की शुजा और जरी और बहादुर खातून से मैं अक़्द करूँ और मुझे एक ऐसा फर्जंद अल्लाह दे जो करबला में मेरे मजलूम बेटे के काम आए। तो इसका मतलब है अब्बास इब्ने अली की शुजाअत। अब्बास उस शेर को कहते हैं जिसको देख के शेर भाग जाए। मैंने किताबों में पढ़ा है कि अब्बास उस शेर को कहते हैं जिसको देखकर, जिसकी हैबत को देखकर शेर भी वहां से फरार इख्तियार कर लें, उसे अब्बास कहा जाता है। जी मौला, जी आका, जी मौला, जी आका। मैं मसाइब को यहां से स्टार्ट करूंगा, शुरू करूंगा। 11 मुहर्रम को शहजादी ज़ैनब ने सलामुल्लाह अलैहा ने यह कहा कि बीबियों को हम सवार कराएंगे। एक रस्म में 12 गले, ऊंट की महार सैयद सज्जाद के हाथ में दी गई। सारा वाक़या सुना हुआ है आपने। बस मुझे एक मुकाम तक लेके जाना है क्योंकि आज शब चेलुम हो जाएगी। करबला से कूफा, जहां आप शहजादी थी। सोचिए, मौला कायनात का दारुल खिलाफा, वहां की शहजादियां, और वहां पे रसन बस्ता दाखिल हो रही हैं जहां की शहजादियां थी। कूफा, करबला से कूफा और कूफे से शाम, इतना तवील सफर तय कराया कि नाकों पे बीबियां हैं, ऊंट की महार सैयद सज्जाद के हाथ में है, आप पापयादा हैं। ऊंट को क्या बयान करूं, ऊंट को तेजी के साथ ताजियाने मारे जाते थे, दौड़ाया जाता था इनाम की लालच में। जल्द अज जल्द दमिश्क पहुंचे और यजीद के दरबार में दाखिल होके शहदा के सर पेश करें और इनाम हासिल करें। तारीख बताती है जिस तेजी के साथ नाके दौड़ते थे, सैयद सज्जाद उसी तेजी के साथ ऊंट की महार को लेके आगे बढ़ते थे। 40 से ज्यादा बच्चे गिरते गए, कब्रें बनती गई, ये काफिला चलता गया। चलते एक मुकाम पे जिस पे सर इमाम अली मुकाम था, वो जमीन में गड़ गया। लाख कोशिश की मगर वो नेजा निकल नहीं रहा था। शिम्र ताजियाना लेके सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास आता है लईन, और कहता है कि अपने बाबा से कहो क्यों रुक गया है, ये सर क्यों रुक गया है, क्यों नहीं निकलता है। इमाम ने कहा, बाबा मैंने बहुत ताजियाने खा लिए, मैंने बहुत तवील सफर पापयादा तय किया है, क्या वजह है। हालांकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम वक्त हैं, मगर अभी इमाम हुसैन इब्ने अली मौजूद हैं। जब सर मुबारक कलाम कर सकता है, तलावत कलाम पाक कर सकता है, तो सर हुसैन से आवाज आई, बेटा सज्जाद, मेरी सकीना पुश्त नाका से गिर गई है, मेरी बेटी जमीन पे आ गई है पुश्त नाका से। हुसैन का सर रुक गया। जब जनाब ज़ैनब कुबरा को ये पता चला, उन्होंने अपने आप को नाका से गिरा दिया। तारीख कहती है हमने देखा नहीं है मौला, मगर रिवायतें हैं और ये हुआ होगा क्योंकि घराना मजहरुल अजायब का घराना है। घुटनों के बल चलते हुए शहजादी शरीकतुल हुसैन जनाब ज़ैनब कुबरा घुटनियों के बल चलते हुए पहुंची। देखा एक मौज़्ज़मा है, नकाब पोश, सियाह बुरके में है, और जनाब सकीना उनकी आगोश में है। आपने कहा कि बहुत शुक्रिया, मुअज़्ज़मा का शुक्रिया अदा किया, आपने हमारी अमानत को संभाल कर रखा, अपनी आगोश में लिया। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। वो मज़लूमा बीवी शुक्रिया अदा कर रही है उस मुअज़्ज़मा का। शरीकतुल हुसैन सानिया ज़हरा उम्मुल मसाइब जनाब सकीना को लिया और चेहरे से नकाब उठा के बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, बेटा ज़ैनब
माँ को नहीं पहचाना, हुसैन ने मदीना छोड़ा, मैंने मरकज छोड़ा, जन्नतुल बकी छोड़ा, जहाँ जहाँ मेरा बेटा जा रहा है वहाँ वहाँ मैं हूँ। और मैं करबला में भी जानू पे हुसैन का सर रखा था, शिब्र नहीं सवार हुआ था, पुश्ते गर्दन से 13 ज़रबों से हुसैन इब्न अली का सर मुबारक जुदा किया। मैं मौजूद थी, मैं तुम्हारे हमरा काफले के साथ साथ हूँ। यकम सफर मुजफ्फर को तारीख में है, ये काफिला जब पहुंचा था, आखिरी अय्याम थे मुहर्रमुल हराम के, 3 दिन तक शाम में दमिश्क में आईना बंदी कराई गई, बाजारों को सजाया जा रहा था, कुछ लोगों ने खुरूज किया है अमीर के खिलाफ, उसके असीरों को लाया जा रहा है। किसी को पता नहीं था कि कौन सा काफिला आ रहा है और उसमें कौन शामिल है। जरा सोचें, उस बाजार को जब मैं देखता हूँ मुझे हैरत होती है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, लोग कपड़े खरीद रहे हैं, लोग लिबास खरीद रहे हैं, लोग अभी भी खरीदारी में मसरूफ है। जहाँ से जनाब ज़ैनब कुबरा, शहजादी उम्मे कुलसूम, उम्मे रुबाब, उम्मे लैला, शहजादी उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा, सकीना बिनतुल हुसैन और सबसे बड़े सैयदुल साबरीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं, उनको खड़ा किया गया, 3 दिन तक खड़ा किया गया, आईना बंदी हो रही है, सजाया जा रहा है, कोई खुरमे फेंक रहा है, कोई आग फेंक रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, और हुसैन इब्न अली का सर मुबारक कलाम कर रहा है। और इसलिए बीवियों ने बालों से अपने रुख को छुपा लिया था, चेहरे को, जिसके चेहरे को कभी चांद ने और सूरज ने न देखा हो और दिन की रोशनी ने न देखा हो, जिनकी आवाज को न सुना हो, जिनके चेहरे मुबारक को न देखा हो किसी ने, उन बीवियों के सरों से रिदाएं ले ली गई थी, पत्थर मारे जा रहे थे, कोई खुरमा देता था, कोई सदक़े का खुरमा फेंकता था, देता था, कोई आग बरसाता था, क्या क्या मजालिम अहले बैत पे हुए उस शख्सियत के लिए कि रसूल शाफ़े महशर हैं, शिफात करेंगे तो जन्नत में लोग जाएंगे, मौला कायनात क़स्म नारे वल जन्ना है, जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले हैं, वो तकसीम करेंगे तो जाएंगे। बीबी फातिमा ज़हरा खातून जन्नत हैं, जितनी औरतें हैं उनकी सरदार हैं, खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब सारा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब मरियम, जनाब आसिया सलामुल्लाह अलैहा, सारी बीवियों की आप सैयद व सरदार हैं, और जिनके बच्चे नौजवान जन्नत के सरदार हैं, उनको इस तरह से उनको कत्ल करके जिस्म से सर को काट के नोके नेजा पे रखा गया और कहा गया कि कुछ लोगों ने खुरूज किया है अमीर के खिलाफ। आज समझ में आया इमाम हुसैन इब्ने अली ने, जो रासिखूना फिल इल्म है, जो ऊतियुल इल्म है, जो उलुल अलबाब हैं, जो अहले जिक्र हैं, जो साहिब अमर हैं, उनको पता था लोग क्या तहरीर करेंगे। अब समझ में आया शहजादा अली असगर को क्यों रखा था लश्कर में। क्या छोटा सा सर भी खुरूज करता है अजीजों? क्या छोटा सर भी अमीर के खिलाफ खुरूज करता है? नहीं, यह हुसैन इब्न अली की फतह का निशान था। जिस सर को झुकाना चाहते थे उसी सर को बुलंद करके नोके नेज़ा पे लेके जा रहे थे। पहली तारीख सफर मुजफ्फर की 7 दरवाजे थे दरबार यजीद में जाने के लिए, 7 दरवाजे थे। 7वें दरवाजे पे जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बैठ गई। इमाम ने अपना लंगर संभाला, तौख जंजीर को संभाला। आए न मैंने ऐसा भतीजा देखा, न मैंने ऐसी फूफी देखी जिंदगी में, बखुदा ऐसे रिश्ते नहीं देखे मैंने जिंदगी में, ऐसे रिश्ते मैंने जिंदगी में नहीं देखे, मैंने ऐसा भतीजा नहीं देखा, मैंने ऐसी फूफी नहीं देखी। जब फूफी रोती थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन गले लगाते होंगे, और जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोते होंगे तो फूफी गले लगा लेती होंगी।
क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है। इमाम को किसी से इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं है। बस एक मर्तबा जब इमाम ने ये कहा, जनाब ज़ैनब कुबरा को ये कहा, फूफी अम्मा आप काफिला सालार हैं, आपकी रजा के बगैर कोई इक़दाम नहीं उठाऊंगा। ये इमाम ने कहा, मनसब बता रहे हैं फूफी का, अपने बाबा की बहन अपनी फूफी का मर्तबा बता रहे हैं, मुकाम। आपकी इजाजत के बगैर इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह रहे हैं मैं कोई इक़दाम नहीं उठाऊंगा। अपना लंगर, अपना हथकड़ियां बेड़ियां संभाली, आए सातवें दरवाजे पे। फूफी अम्मा क्या है, दरबार में नहीं चल रहे, दरबार में नहीं जा रहे, बहुत खड़ा इम्तिहान है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सारी जिंदगी कहते रहे अशाम 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 अशाम। जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा, बेटा सज्जाद, बाबा ने कहा था जब दरबार में जाना होगा, एक वक्त वो आएगा कि जब दरबार यजीद में हाजिरी होगी, बेटा मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। बाप को बेटियों से बड़ी मोहब्बत होती है, बाप को अपनी बेटियों से बड़ा प्यार होता है। अगर इतना सब पता चल जाए कि बेटी को कोई परेशानी लायक है तो बाप की रातों की नींद खत्म हो जाती है। हुसैन इब्न अली ने यही कहा था। आवाज आती थी बार बार, ज़ैनब बद्दुआ न देना, बहन बद्दुआ न देना, बहन बद्दुआ न देना। खुदा की कसम अगर जनाब ज़ैनब कुबरा और खवातीन जो भी अहले बैत की थी, अगर वो हाथ उठा के बद्दुआ दे देती, कयामत आ जाती, कयामत आ जाती। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब कुबरा शरीकतुल हुसैन सानिया ज़हरा सलाम पढ़ते हुए खड़ी हो गई, अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन, और ये कह के दरबार यजीद में दाखिल हुई, क्योंकि मौलाए कायनात आ चुके थे। दरबार यजीद में जब दाखिला हुआ, सारे वाक़यात आप जानते हैं। यजीद ने एक एक बीबियों का तारुफ किया और कहा, मुझे ये बताओ अली की बड़ी बेटी कौन है, कौन है, ज़ैनब कौन है, मैं कलाम करना चाहता हूँ। बाप रे बाप, 700 हाफिज कुरान, कारी कुरान उलमा बैठे हुए हैं। यजीद की बीवी, यजीद की कनीजें पर्दे के पीछे हैं। नबी की बेटियां बेमखनाओ चादर एक गोशे में आके खड़ी हो गई। आज मैं यहाँ मसाइब पढ़ रहा हूँ, अगर मेरे खानदान की, मेरे अजीजों में से कोई ऐसी खातून आ जाए तो मैं लगेगा कि जमीन खुल जाए और उसमें मैं गर्क हो जाऊं, वो जमीन बंद हो जाए। हाय आप इसे बीमार सैयद सज्जाद। यजीद ने सबका नाम पूछा और बीबियों ने घेर लिया। ज़ैनब कुबरा से कहा, आप कलाम ना कीजिएगा, बहुत सी रिवायतें हैं। तश्त तला में सर हुसैन इब्न अली रखा हुआ था। यजीद ने बहुत वाक़यात हुए, बहुत तवील वाक़यात है कि सकीना सुनाए तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत चाहता था। हाँ मेरा बाबा मुझे बहुत चाहता था। 4 साल की बच्ची, 4 साल की बेटी। हुसैन फरमाते हैं, हुसैन इब्न अली मुझे वो घर पसंद नहीं, जब मेरी बेटी सकीना ना हो मुझे वो घर पसंद नहीं। तश्त तला में यजीद बेहुरमती करता जाता है। हुसैन इब्न अली का सर मुबारक है और कहा, मैं तो तब जानूं जब ये सर तश्त तला से उठ के तुम्हारी आगोश में आ जाए। बड़े दरबार में हाफिज कुरानों ने देखा, हाफिज कुरान थे, कारी कुरान थे, बहुत सारे जय्यद उलमा बैठे हुए थे, सारा दरबार खत्म खच भरा हुआ था। लोगों ने देखा, तश्त तला से सर उठा, उठ के जनाब सकीना की आगोश में आ गया। बेटी ने बाबा के सर मुबारक को दे के रुखसार में रुखसार रख दिया। बहुत प्यार किया। बहुत तवील मसाइब नहीं पढ़ सकता हूं मैं। एक मस्करे को भेजा कि जरा इनका तमस्खुर जोड़ाओ। वो मस्करा आया और जब जनाब ज़ैनब कुबरा के सामने आया तो जनाब ज़ैनब कुबरा ने फसी और बली अरबी में गुफ्तगू शुरू की। उसने कहा, आप अरबी जानती हैं?
अरबी तो पढ़े लिखों की जबान है, अरबी तो बहुत ही जो इल्म से आरास्ता हो उनकी जबान है। आप कौन है? बीबी ने अपना तारुफ कराया, तारीख में यह वाकया लिखा है। उसने कहा मैं अभी आता हूँ। वो दरबार से बाहर गया, तलवार से अपना शाना काटा, दरबार में आया, शाना जनाब ज़ैनब कुबरा के सामने फेंका। उसने कहा मैं शर्मिंदा हूँ बीबी, मुझे नहीं पता था आप खानदान नबूवत की बेटियां हैं, मुझे नहीं पता था आप अहले बैत की बेटियां हैं, मेरी तकसीर को माफ कर दीजिए, मस्करा था, मार्फत पहचानता था, बीबी मुझे माफ कर दे, मैंने नहीं आपको पहचाना था, आप कौन है? ये काफिला जिंदान पहुंचा, जहां छत नहीं थी, दिन की धूप, रात की शबनम, आले मोहम्मद का मुकद्दर। जनाब शकीला बार बार पूछती थी कब रिहाई होगी भाई, कब रिहाई होगी फूफी अम्मा, कब जाएंगे हम अपने घर, कब मैं बहन सुकरा से मिलूंगी, कब रिहाई। भैया सज्जाद, ये परिंदे उड़ते हुए कहाँ जाते हैं, कहाँ ये अपने घरों को जाते हैं, हम कब जाएंगे? एक दिन जनाब शकीला इंतकाल कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसी कुर्ते में दफन किया भाई ने अपनी बहन को, लहर के हवाले किया। उम्मे रुबाब सलामुल्लाह अलैहा नहीं चल रही थी वापसी में। और ये बता दूं, यही तो कलाम को मैं मुख्तसर करूंगा कि एक आदमी आया दरबार से कि यजीद ने तलब किया है। चाहने वाली फूफी लिपट गई, बेटा सज्जाद में जाने नहीं दूंगी, बेटा सज्जाद में जाने नहीं दूंगी। कहा फूफी अम्मा इत्मीनान रखिए, फूफी अम्मा इत्मीनान रखिए, कुछ भी होगा आपकी इजाजत के बगैर इक़दाम नहीं उठाऊंगा, इत्मीनान रखिए। तारीख बताती है जब दरबार में आप पहुंचे तो यजीद लिखा जाता है ताज़ीमन खड़ा हो गया और उसने कहा फर्जंद रसूल बड़ी तकसीर हुई, बड़ी खता हुई, बड़ी तकसीर हुई, इस तख्त पे बैठिए। मौला को जलाल आ गया, मौला लही वो नागर हो चुके थे लागर, मौला को जलाल आ गया उस तख्त पे जिस तख्त ने मेरे आबा और अजदाद, मेरे घराने और मेरे बाबा को तहे तेक कर दिया, उस तख्त पे मैं बैठूंगा। हद्दाद आया लोहार, उसने गले का तौक काटा, देखने वालों ने देखा गोश्त नहीं है, हड्डियां नजर आ रही है इमाम की, हड्डियां नजर आ रही है, पाँव की बेड़ियां कटी, हाथ की हथकड़ियां कटी। सैयद 70 संदूक ला कर रखे गए। कह रहा था ना कोई फरिश्ता आया ना कोई वही आई, बनु हाशिम का ढोंग था, ये सब ढोंग था। तब ये सब कुछ मैं कहता था, असास वदियत को जानता था, खूब बहा जानता था यजीद। अगर सैयद सज्जाद खूब बहा ले लेंगे मैं रहा हो जाऊंगा। 70 संदूक कसीम नारे वल जन्ना के फर्जंद को पेश किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है दरबार में? मौला ने कहा नहीं, जब हशर बर्पा हो और जब मुकाम महमूद पर मेरे रब जद रसूलुल्लाह जलवा अफरोज हो और मेरी जद्दा आए, उनको दे देना। अगर वो पेश करे कबूल करे हम कबूल करेंगे। इमाम ने कबूल नहीं किया। बस आखिरी में ये है, जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा ये रंगीन पर्दे नहीं चाहिए बेटा सज्जाद, इस पे काले पर्दे लगवाओ। 3 या 4 नाके आए थे। जब ये करबला पहुंचा, जनाब ज़ैनब कुबरा ने अपने आप को नाके से गिरा दिया। उस वक्त जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कब्र बनी हाशिम पर थे, नाबीना हो चुकी थी। कब्र से आवाज आई, चचा जाबिर हट जाए, मेरी बहन पेशवाई को आ रही है। 3 दिन तक गिरिया और मातम हुआ, अपने आप को नाके से गिरा दिया। घुटनों के बल चलती हुई भाई के मरकत पर आई, सारा वाकया बयान किया। उसकी याद जेलुम के तौर पर मनाई जाती है, जिसका लाशा रेगदार करबला पे बेखुसलो कफन पड़ा हुआ था और बीबियां नाकों के ऊपर रस्सियों में जकड़ी जा रही थी। सर मुबारक नौके नेजा पे आवेदा थे और सैयद सज्जाद हाथ में ऊंट की महार लिए हुए थे। आज करोड़ों लोग जमा है। मैं भी चाहता था कुछ बोल इमाम वक्त की बारगाह में ताज़ियत कर दूं। दुनिया में बस यही ख्वाहिश है मौला, खाने काबा की ज़ियारत हो, मदीना मुनव्वरा की रोज़ा रसूल की ज़ियारत हो, जन्नतुल बकी की ज़ियारत हो, जनाब मौला कायनात की ज़ियारत हो, नजफ़ अशरफ
दमिश्क, काजमैन, सामरा, करबला की ज़ियारत हो। सबके लिए यही दुआ करता हूँ, जो जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर करे, जो जो लोग इस वक्त बीमार हैं उनको शिफाए कामला आजिला अता हो, जो लोग मुतमन्नी हैं नहीं जा सके वो आने वाले अरबईन पे जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।